ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and assalamu alaikum jawano. Welcome back to the new lecture of thermodynamics. Now in this lecture we are going to understand these things, right? This is our agenda, and the first thing that we are going to understand is the concept of entropy, right? Very cool and very significant concept. याद रखिएगा, बहुत ही important concept है. Then we are going to understand the second law of thermodynamics. अब आप कहोगे कि सर बस भी कर दो यार, ये second law तो खत्म ही नहीं हो जा रहा. तो इंशाल्लाह से this will be the last nail in the coffin of second law of thermodynamics. But this is the lecture कि जिसमें हम इसको truly सही अंदाज से समझेंगे, right? And that is the second law of thermodynamics in terms of entropy, right? It will be very cool. Right? Lecture में बहुत मजा आने वाला है. And then we are going to understand the second law of thermodynamics in terms of entropy with the help of some examples. दो तीन examples देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, dismantle करने की कोशिश करेंगे. And last but not the least, we are going to understand entropy and time arrow. Entropy को बाज़ औक़ात time arrow भी कह दिया जाता है. So we are going to understand this as well, right? So let us get straight into it. ओके, सो जवानों स्टडी करते हैं एंट्रोपी को. नाउ इट्स अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज एक्चुअली द डिसऑर्डरनेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. कि एक सिस्टम आपने जो लिया हुआ है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर कितनी केओस है, कितनी अफरा तफरी है, राइट? दैट इज एक्चुअली द एंट्रोपी, राइट? अच्छा, नाउ व्हाट डज दिस मीन? अब इसको एक और तरीके से हम इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं. इट इज द मेजर ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन एनर्जी टू डू सम यूजफुल वर्क. याद रखिएगा, जितनी ज्यादा अफरा तफरी होगी तो उतना ही आपके लिए जो है उससे यूजफुल काम निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट? ये आप इस तरह से भी कह सकते हो, ठीक है जी? जो अभी हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं, राइट? और स्टेज सेट करेंगे for the second law of thermodynamics. So be with me, flow के साथ जाएं जो मैं कहने जा रहा हूं. अब एक और बात जो कि मैं आपको बता दूं, before getting into this part, the entropy itself is not that important. We are not going to understand the entropy. मतलब entropy तो हमने यहां पर, ये तो definition मैंने लिखी नहीं है. But what is more significant and more important is actually the change in entropy. याद रखिएगा, अगर मैं सिंपल एंट्रोपी कहूं तो एंट्रोपी इज एक्चुअली डिनोटेड बाय एस, और एंट्रोपी का जो इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली द डिसऑर्डरनेस अमंग द पार्टिकल्स. दैट इज एस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू के लॉग ऑफ डब्ल्यू. नाउ ये एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो कि आप लोगों के लेवल से बहुत बाहर है, ठीक है जी? राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, राइट? सिर्फ आपको बता देता हूं कि k is a Boltzmann constant. This formula was actually derived by or given by Ludwig Boltzmann. और Ludwig Boltzmann साहब की कब्र मुबारक को अगर आप गूगल करो the grave of Boltzmann, तो आपको उसकी कब्र के ऊपर ये फार्मूला नजर आएगा, ठीक है जी? राइट? क्यों? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बाय द वे. लेकिन एनी हाउ, कभी हमें इंशाल्लाह से टाइम मिला तो इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल से बात होगी. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो कि आप लोगों के लेवल का है, वो क्या है कि entropy itself is not important to us. What important to us is actually the change in entropy. That is important to us, right? We are going to understand that. So change in entropy को समझने के लिए, right, हम क्या करते हैं? Change in entropy को अगर हमने समझना है, so what we need to do is, मार्कर का एम बहुत ज्यादा था तो उसको मुझे हटाना पड़ा, ठीक है? So what is going to be the change in entropy? Now the heat energy supplied to or taken out of this body divided by the temperature at which the heat is either supplied to or taken out of the body is called what? The change in entropy. So the change in entropy is actually equal to delta Q. Now delta Q can be either heat supplied to the system or taken out of the body, right? Divided by the temperature
कि जिस टेम्परेचर पे उस बॉडी को हीट सप्लाई की जा रही है या जिस टेम्परेचर पे उस बॉडी से हीट ली जा रही है। ठीक है जी। सो स्ट्रेट अवे इस इक्वेशन से हम इसको ज्यादातर यूज करेंगे। दिस इज द थिंग बिकॉज दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, राइट। अब यहां पर अगर मैं यूनिट देख लूं तो ऐसा यूनिट जो बनता है वो क्या बन जाता है, ऐसा यूनिट इज दैट इज जूल पर केल्विन। सो दैट हैपेंस टू बी जूल पर केल्विन। नीचे टेम्परेचर है, ऊपर एनर्जी है। ठीक है। सो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अब यहां पर ये जितने भी मैंने डेफिनेशन लिखे हुए हैं इसको काइंडली आप लोग लिख लो। शाबाश जवानों, शाबाश बच्चे, होमवर्क गई, इसको आप लोग लिख लो, right? And then I'm going to utilize this space to explain these three one by one with the help of a very simple example, and that example is going to set a stage, a podium for the second law of thermodynamics as well, right? So kindly शाबाश बच्चे जवानों के लिख लो, शाबाश, वीडियो को पॉज करके ये जगह पर लिख लो, शाबाश। ओके जवानों, तो आई बिलीव लिख लिया होगा। आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ, मिटा देते हैं इसको ताकि एंट्रोपी के प्यारे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ओके ओके, सो दिस इज इन एज सिंपल वर्ड्स as possible, that is the second law of thermodynamics in terms of entropy, which is the much broader concept, broader view है। तो जवानों, simple, for any natural irreversible process, right? और नेचुरल प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है जी, राइट। स्पॉन्टेनियस मींस खुद से होने वाले, कि आप नेचर को धक्का नहीं दे सकते कि हो, आप नेचर में अपनी इंटरफेरेंस नहीं डाल सकते। ठीक है जी, राइट। ठीक है, वो कहते हैं ना जी, बिजली को तरुण की बगुते नवे। ठीक है। सो एनी हाउ, जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो इररिवर्सिबल भी होते हैं। दैट इज आल्सो वन पॉइंट जो कि अभी हम समझेंगे। ठीक है जी, एक सिंपल एग्जांपल से और फिर इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल। ठीक है जी। सो फॉर एनी नेचुरल इररिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी is always going to be greater than zero. The change in entropy of the universe, UNI means universe, is always going to be greater than zero. क्या मतलब हुआ जी इसका? अच्छा जी, देखते जाओ। मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है, राइट, दिस कप ऑफ टी। नाउ जब आप चाय, गर्म चाय आपको जब मिलती है तो आप देखोगे अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो और आप उसे ना पियो तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है, राइट। सो कूलिंग ऑफ द टी, व्हाई डज दिस हैपन? सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस concept of the change in the entropy of the universe is always going to be greater. That is also the second law, जो कि दरमियान में आपको समझ आ जाएगा Kelvin statement और Clausius statement के थ्रू। अच्छा, now this is our system right now, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। ये आपके पास चाय के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब यहां पर ये आपके पास सिस्टम है, तो यहां पर जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या हुए? सराउंडिंग। सो हियर कम्स द सराउंडिंग। ठीक है जी। अब दो तरह के प्रोसेसेस यहां पर हो सकते हैं, राइट? दो चीजें यहां पर हो सकती हैं। नंबर वन, कि या तो इसका इधर से हीट निकले और एटमॉस्फेयर में जाए, मतलब सराउंडिंग में जाए। दिस इज द फ्लो ऑफ हीट, दिस इज हीट, राइट? सो हीट फ्लोइंग फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सो आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये आपके पास हॉट टी है, दिस इज HTR, दिस इज H, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस इज HTR, while the surroundings is LTR, right? Because hot टी है ना, मैं क्या हुआ है, हॉट टी, गर्म है, तो this happens to be HTR, इसका टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो एक सिचुएशन तो ये पॉसिबल है कि इधर से हीट निकले इनटू द सराउंडिंग, राइट? आपको ये होता है, तो उससे क्या होता है कि यहां पर टेम्परेचर कम होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होता है। तो सिस्टम तो आपका ये है ना, तो चाय का टेम्परेचर कम हो रहा है, इट इज कूलिंग ऑफ। सो वक्त गुजरने के साथ साथ उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब देखते हैं कि
चेंज इन एंट्रोपी कैसे आता है। सो यहां पर अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं यहां पर पहले से लिख देता हूं। याद रखिएगा बच्चे कि सिस्टम प्लस surrounding happens to be equal to what? Our universe, right? System, this is our system, and all the things other than a system happens to be surrounding. So ये तमाम surrounding और system को अगर हम combinedly देखें, so this contains या this forms our whole universe. अगर मैं इस मार्कर को स्टडी कर रहा हूं, so this is my system. इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सराउंडिंग में आ जाती हैं, तो वो सराउंडिंग प्लस ये सिस्टम एज अ होल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिवर्स। ठीक है, सो दिस इज द यूनिवर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर चेंज इन एंट्रोपी अगर मैं मालूम करना चाहता हूं फॉर दिस प्रोसेस, जब हीट जो है वो आउट ऑफ द टी जा रहा है इनटू द सराउंडिंग, सो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि change in the entropy of the whole universe is going to be equal to what? Is going to be equal to this thing. And इसका भी कैसे कि सम आपने लेना होगा of the whole objects जो कि यूनिवर्स में आते हैं। अब यूनिवर्स में तो दो चीजें हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग है, तो मैं सिंपल कह देता हूं कि आपके पास चेंज इन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द हीट जो कि इधर से निकल रही है डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लेट मी कॉल इट T1 एंड लेट मी कॉल इट T2। सो यहां पर T1 हो जाएगा, राइट? अच्छा जी, फिर चूंकि एडिशन है, अब ये हीट सराउंडिंग ने रिसीव की है, सो प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, और सराउंडिंग ने किस टेम्परेचर पे रिसीव की है? T2 पे रिसीव की है, सो दिस इज T2। सिंपल, राइट? दिस इज द सेम। एडिशन आपने करनी है तमाम, ये जो आपको नजर आ रहा है इन तमाम की आपने एडिशन करनी है, राइट? दैट विल बी द होल यूनिवर्स। ये सिस्टम के लिए, वो सराउंडिंग के लिए। लेकिन अब यहां पर एक बात है, इधर से हीट निकल रही है सिस्टम से, सो हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। सो लेट मी से कि लेट अस से Q1 अमाउंट की हीट निकल रही है, तो यहां पर सिंपल Q अमाउंट की हीट निकल रही है, तो जब Q अमाउंट की हीट निकल रही है, सो दिस इज Q बट विद द नेगेटिव साइन, राइट? और जितनी अमाउंट की हीट यहां से निकल रही है उतने ही अमाउंट की हीट सराउंडिंग रिसीव कर रहा है। सो सराउंडिंग के लिए आपके पास सिचुएशन क्या है कि ही इज रिसीविंग दिस हीट, सो हीट supplied to the system is actually as supplied to anything is taken as positive। so इसके पास जो हीट आ रहा है वो क्या है? वो पॉजिटिव है। जितना हीट इसने लूज किया उतना हीट सराउंडिंग ने गेन किया। सो Q के साथ मैं सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहा, सो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, सो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर, सो दिस इज प्लस, राइट? तो ये वाला जो होल टर्म आपको नजर आता है ये नेगेटिव है, और ये वाला होल टर्म जो है ये पॉजिटिव है। अब देखना ये होगा कि ये पॉजिटिव वाला टर्म ज्यादा आता है या नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा आता है। दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, लेट अस से मैं वैल्यूज दे देता हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए यहां पर सिंपल कर लेते हैं। नाउ द चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली इक्वल टू, देखते जाए, लेट अस से कि जो हीट यहां से रिलीज हो रही है वो आपके पास है, मैं कह देता हूं दैट हैपेंस टू बी 10 जूल्स। कितना है? 10 जूल। So this will be minus 10 joule, right? Divided by जिस टेम्परेचर पे अभी फिलहाल एयर है, लेट मी से सॉरी जो टी के पार्ट का जो सिस्टम है, लेट मी से कि T1 टेम्परेचर हैपेंस टू बी इक्वल टू, मैं खुद से एक वैल्यू ले रहा हूं, लेट मी से कि ये आपके पास है, चलिए जी कह देते हैं कि ये आपके पास हो गया 20 केल्विन, या चलिए 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, राइट? केल्विन में लेना चाहिए लेकिन चलिए जी कह देते हैं केल्विन, 20 केल्विन में आ गया, राइट? खुद से मैं वैल्यूज ले रहा हूं, खुद से, हालांकि 20 केल्विन नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट? यहां पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैं कह देता हूं, लेटर से खुद से मैं ले रहा हूं 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस, राइट? सिर्फ समझाना है आपको। अब यहां पर टेम्परेचर आपके पास कितना है? 20, सो डिवाइडेड बाय 20, ठीक हुआ जी। अब यहां पर प्लस साइन,
अब जितने अमाउंट की हीट इसने रिलीज की है उतने ही अमाउंट की हीट उसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है। सो वहां पर आपके पास क्या है, 10। एब्जॉर्ब मींस रिसीव करना, तो प्लस हो गया। लेकिन जिस टेम्परेचर पे उसने रिसीव की है वो टेम्परेचर इस टेम्परेचर से लेस होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ हॉट टी, इट इज HTR और वो LTR है। सो लेट मी से कि T2 जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो T2 का जो टेम्परेचर है वो मैं कह देता हूं 10 डिग्री सेल्सियस। सो इट हैपेंस टू बी 10 डिग्री सेल्सियस, या चले 5 कर देते हैं ताकि ज्यादा आसान हो जाए। 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ डू टेल मी कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सा ज्यादा है, देखते जाए जरा कौन से। सो चेंज इन एंट्रोपी is going to be equal to, this happens to be equal to what, this happens to be equal to 1 divided by 2 means 0.5, तो माइनस उसके साथ लगा हुआ है माइनस 0.5, राइट। यहां पर सॉरी डिग्री सेल्सियस है, राइट। सो जूल पर केल्विन भी लिख सकते हो या जूल पर डिग्री सेल्सियस मैंने फिलहाल लिया हुआ है, सिर्फ समझाना है आपको। तो प्लस आपके पास आ गया, यहां पर क्या आएगा 10 divided by 5, तो it is actually plus 2, right? Now 2 ज्यादा है कि 0.5? Obviously 2 is greater. So जो change in entropy है that happens to be actually equal to plus is equal to plus 1.5. इसका मतलब ये है कि change in entropy happens to be equal to greater than 0, and this change in entropy is actually for the whole universe, because सिस्टम के लिए भी हमने किया और सराउंडिंग के लिए एज अ होल उनको क्या किया, ऐड किया। सो एज अ होल यूनिवर्स की आपके पास चेंज इन एंट्रोपी आ गई कि एज अ होल यूनिवर्स के अंदर केओस बढ़ा है या केओस में कमी आई है। तो हमें ये बताता है कि केओस के अंदर ज्यादती आई है। क्यों? बिकॉज जिस टेम्परेचर पे हीट यहां से रिलीज हुआ वो ज्यादा है, और जिस टेम्परेचर पे उसने हीट रिसीव किया वो टेम्परेचर कम है, तो वो टेम्परेचर यहां पर कम यहां पर ज्यादा, which makes this term greater and this term smaller, and the smaller term is with the negative sign and greater term is with the positive sign. So ultimately the result is going to be a positive one. So this is the thing, for any natural irreversible process the change in the universe is going to be greater than 0. The change in the entropy of the universe is going to be greater than 0. What is entropy? The disorderness among the particles of the system. इसका मतलब ये है कि एज अ होल यूनिवर्स की जो डिसऑर्डर है वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू कि वो कम हुआ है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि देखते हैं कि इसका रिवर्स पॉसिबल है कि नहीं। नाउ डू टेल मी कि जब आप चाय को रखते हो एटमॉस्फेयर में तो क्या वो खुद ब खुद गर्म हो सकता है? अगर तो यही सिचुएशन रही कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है 5 डिग्री सेल्सियस है और सिस्टम जो आपके चाय के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो खुद ब खुद गर्म हो जाए? क्या आप लोगों ने कभी देखा है, कभी आपने देखा है कि LTR से हीट फ्लो कर जाए इनटू द HTR? पॉसिबल है? आप कहते हो कि सर बिल्कुल पॉसिबल है, फ्रिज में तो हो सकता है। फिर रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हो, अंदर जो LTR है उधर से हीट निकालते हो और बाहर की तरफ फेंकते चले जाते हो, और बाहर क्या है HTR, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम LTR टुवर्ड्स HTR। लेकिन क्या वो स्पॉन्टेनियस है? क्या वो हीट जो है फ्रॉम द LTR वो खुद फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द HTR जस्ट लाइक इन दिस सिचुएशन? यहां पर क्या आपको कुछ करना पड़ता है? हीट खुद ब खुद फ्लो करती है फ्रॉम HTR टू LTR। सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर रिवर्स में आ जाओ कि हीट जो है वो बजाय कि सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, हीट उल्टा सराउंडिंग से आ रहा है और जज़ब हो रहा है इनटू द टी, राइट? अगरचे this situation does not violate any law of physics, law of conservation of energy is still applicable, and yet every time you place T in the open atmosphere it is going to do what? It is going to be cooled down instead of warming up, instead of heating it up। अगर तो सिचुएशन यही रही, राइट? सो कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि हीट जो है वो इनसाइड जाए, हालांकि इट इज इक्वली पॉसिबल। देखते जाए जरा, यहां से
हीट एनर्जी फ्लो कर रही थी इनटू द सराउंडिंग। तो यहां पर एनर्जी कम हो रही थी, लेकिन जितने अमाउंट में यहां पर एनर्जी कम हो रही थी उतनी अमाउंट में सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड, ठीक है जी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि उधर से हीट एनर्जी आ रही है इनटू द टी, तो सिंपल, उसका टेम्परेचर कम है तो क्या हुआ, तो वो जितनी एनर्जी उसकी कम हुई है सराउंडिंग की, उतनी ही एनर्जी यहां पर चाय के पार्टिकल्स ने गेन की है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टिल वैलिड होना चाहिए, हो सकता है, राइट। लेकिन एवरी टाइम दैट यू ऑब्जर्व कि ये कभी भी नहीं होता। सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, राइट। इट इज द लॉ ऑफ नेचर कि हमेशा नेचर ये चाहता है, नेचर ये चाहता है कि एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्लोइंग फ्रॉम HTR टू LTR, राइट। एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से होगा। यहां से एनर्जी खुद ब खुद जाएगी इनटू द सराउंडिंग, राइट, ये खुद ब खुद जाएगी। हाँ, सराउंडिंग से एनर्जी HTR की तरफ खुद नहीं आएगी। हाँ, आप ला जरूर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में जो आप करते हो आप ला जरूर सकते हो, लेकिन फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। और द मोमेंट यू डू वर्क, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं रहा, ठीक है जी। मतलब खुद से नहीं होने वाला प्रोसेस जो है वो नहीं रहा, वो अब आप क्या कर रहे हो, करवा रहे हो। सो अब देखते हैं कि अगर तो हीट एनर्जी वहां से फ्लो हो, सो चेंज इन एंट्रोपी कैसे आता है। अच्छा जी, अब देखिए, नाउ द सेम प्रोसेस है, लेकिन अब होगा क्या कि सराउंडिंग से राइट हीट निकल रही है और सिस्टम पे आ रही है, तो सिस्टम की तरफ अब हीट आ रही है। सो सिस्टम से जो हीट निकल रही थी वो अब पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज द हीट इज फ्लोइंग इनटू द सिस्टम। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस टर्म पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, राइट, ओके। और चूंकि सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस टर्म नेगेटिव। सो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड दिस थिंग इज पॉजिटिव, ठीक हुआ, राइट। अच्छा, नाउ डू टेल मी कि यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर अगेन 1.5 आएगा, बट विद द नेगेटिव साइन। 1.5 विद द नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि नाउ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज लेस देन 0, राइट। और कभी भी ये प्रोसेस नहीं होता, इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से नहीं होता। आप करवा जरूर सकते हो, खुद से कभी नहीं होता। और हालांकि अलाउड है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज अलाउड, जितना वो हीट लूज करेगा उतना ये गेन कर गया। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है कि प्रोसेस के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। सो प्रोसेस की फ्लो की डायरेक्शन हमेशा वो होगी जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, राइट, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर मूविंग, राइट, फ्रॉम ऑर्डर टुवर्ड्स disorder. So that is also another thing कि in the universe all the things are moving from order to disorder. Disorderness बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, each and every second बढ़ रही है, बढ़ रही है, right? कभी भी ये नहीं पॉसिबल कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि एक चीज ऑलरेडी डिसऑर्डर फॉर्म में थी और वो ऑर्डर की तरफ चली जाए, और वो भी खुद ब खुद चली जाए। खुद ब खुद नहीं हो सकता। हाँ, आप करवा जरूर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वक्त के गुजरने के साथ साथ आपके कमरे की चीजें जो है वो खराब होती चली जाएंगी, कमरे के अंदर गंदगी फैलती चली जाएगी। मैं सिर्फ एक एनालॉजी दे रहा हूं, लेकिन कभी आप नहीं देखोगे कि कमरा खुद ब खुद ठीक हो जाए, नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको करना पड़ता है, राइट। सो कमरे का जो है तहस नहस होना, उल्टा पुल्टा होना, ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट, स्पॉन्टेनियस है, हो रहा होता है खुद ब खुद टाइम के गुजरने के साथ साथ। अब मैं टाइम का कॉन्सेप्ट भी दरमियान में मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं, इंजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन वापस नहीं होता कभी कभी। कभी भी जो है आपने नहीं देखा कि कमरा खुद ब खुद ठीक हो जाए, लेकिन खुद ब खुद खराब जरूर हो जाता है। हाँ, खुद ब खुद ठीक तब होता है, खुद ब खुद का लफ्ज निकाल दें, ठीक तब होता है जब आप कुछ वर्क करो। तो जब आप खुद कुछ वर्क करते हो तो वो स्पॉन्टेनियस तो नहीं होना, वो खुद ब खुद का लफ्ज मुझे निकालना होगा। सो द थिंग इज कि जब आपके पास ये कंडीशन हो, फॉर अ नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा यही कंडीशन होती है जो कि अभी हमने प्रूव की। सो थिंग्स आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम ऑर्डर
टू डिसऑर्डर, याद रखिएगा, राइट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। अब यहां पर लेट मी वाइप दिस ऑफ, देखते जाए। काइंडली शाबाश लिख लो, शाबाश जवानों, शाबाश जवानों, शाबाश। लेट मी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ओके, आई बिलीव लिख लिया होगा। अब मैं यही एग्जांपल यूज करता हूं और टाइम का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इंजेक्ट करवा देता हूं, ठीक है जी। देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ ये आपके पास वही थी और ये मैं कह देता हूं ये भी वही प्याला है, राइट, ठीक है जी। सेम HTR with the temperature of 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। वही पार्टिकल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब दो सिचुएशंस हैं, देखते जाए जो अभी हमने किए थे, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकूं। दिस इज सिस्टम और यहां पर आपके पास है आपका प्यारा सा सराउंडिंग, राइट, एट टेम्परेचर जितना जो हमने लिया था 5 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से, राइट। अच्छा, अब ये जो है दिस थिंग, हीट फ्लोइंग इनटू द सराउंडिंग, ठीक है जी। दैट इज एक्चुअली यहां पर जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी आया था, दैट वाज पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स ग्रेटर देन 0। और यहां पर जब हमने किया कि उसी सराउंडिंग से हीट जो कि लेस टेम्परेचर पर है और हीट जो है वो अंदर जा रहा है इनटू द T, तो यहां पर जो हमारे पास आया वो क्या आया, the change in entropy happens to be less than 0, change in entropy of the universe, right? So both of them are equally valid in the realm of physics. दोनों होने से फिजिक्स की कोई भी लॉज वायलेट नहीं होते। जितना हीट इसने लॉस किया, सराउंडिंग ने गेन किया, जितना हीट सराउंडिंग ने लॉस किया, सिस्टम ने गेन किया, डजंट मैटर। लेकिन एवरी टाइम आप देखते हो कि दिस हैपेंस एंड दिस डज नॉट हैपन। सो यहां पर कोई भी प्रोसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो आपकी केमिस्ट्री में, वो खुद से कब होगा, राइट, और खुद से कब नहीं होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स आया 0 से ज्यादा है या आया 0 से लेस है। हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर तो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो खुद से नहीं होगा। आपको अगर कुछ करना है, अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको कुछ करना होगा। मतलब द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं होगा। दिस इज व्हाट, स्टार्स में लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए, स्पॉन्टेनियस, खुद से होता है, चाहे खुद से ठंडी होती है, खुद से कभी गर्म नहीं होती। ओके, ये आपके पास सिचुएशन हुई। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। वहां पर फिर गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ भी आप जाते हो, राइट, एंथैल्पी वगैरह। एनी हाउ, अगर मुझे टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास इस पे भी होगी। अच्छा, ये आपके पास हुआ। सो दिस इज द लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एक्चुअली द लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ओके, ये सिचुएशन आपके पास हो गई। अब यहां पर मैं टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर जिस लिहाज से ऑर्डर आ रहा था, देखिए इधर से जब एनर्जी निकल रही है तो यहां पर पार्टिकल्स जो है वो स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, केओस कम हो रहा है। लेकिन वो एनर्जी किधर जा रही है, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग के पार्टिकल्स में केओस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जितनी एनर्जी सराउंडिंग ने रिसीव की है वो एग्जैक्टली बराबर है जितनी सिस्टम ने लूज की है। बिल्कुल जी, फेयर है ना। लेकिन सराउंडिंग ने जिस टेम्परेचर पर वो एनर्जी रिसीव की है वो टेम्परेचर स्मॉल है एज कंपेयर टू जिस टेम्परेचर पे सिस्टम ने हीट लूज की थी। सो यहां पर जिस अमाउंट से, गौर से अल्फाज सुने, जिस अमाउंट से यहां पर केओस आया है, डिसऑर्डरनेस आया है, उससे कई ज्यादा का डिसऑर्डर सराउंडिंग में आया है। तो एज अ होल यूनिवर्स की जो डिसऑर्डरनेस है वो तो ज्यादा हो गई ना, बिकॉज सराउंडिंग का डिसऑर्डर ज्यादा है और यहां पर ऑर्डर कम है। तो ऑर्डर कम
डिसऑर्डर ज्यादा, तो एज अ होल तो डिसऑर्डर बाजी ले गया ना, राइट। सो याद रखिएगा, अगर एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और उसके लिए ये सिचुएशन है जो कि होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, सो थिंग्स विल बी मूविंग फ्रॉम ऑर्डर टुवर्ड्स डिसऑर्डर। वो तमाम प्रोसेसेस जो कि खुद से होते हैं उसमें आप देखोगे कि थिंग्स मूव फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, ये हीट लूज कर रहा है तो यहां पर थोड़ा सा ऑर्डर आ रहा है, राइट, और ये हीट गेन कर रहा है, यहां पर डिसऑर्डर अब आने लगेगा, राइट। पार्टिकल्स यहां पर देखिए, जब कोई पार्टिकल एनर्जी लेता है ना तो इसका मतलब उसे पैसे मिल रहे हैं, और जब उसे पैसे मिलते हैं ना तो वो कहता है जी मैं हूं जी, मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूं इससे भी टक्कर मारता है, उससे भी टक्कर मारता है, किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर जब इनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है तो यहां पर केओस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली यहां से जब पार्टिकल से एनर्जी निकलेगी, एयर के पार्टिकल से या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से एनर्जी निकल रही है, बिकॉज हीट इज फ्लोइंग इनटू द टीना सिस्टम। तो सराउंडिंग से एनर्जी जब निकल रही है तो सराउंडिंग से जिस टेम्परेचर पे वो एनर्जी निकल रही है वो टेम्परेचर अगेन कम है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या है, यहां पर आपके पास उसका उल्टा सिचुएशन हो गई है। उल्टी सिचुएशन का मतलब यह है कि यहां पर जिस लिहाज से डिसऑर्डर क्रिएट ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, बिकॉज एनर्जी निकल रही है ना, पैसा निकल रहा है और यहां पर आ रहा है, तो जब यहां पर आ रहा है यहां पर डिसऑर्डर क्रिएट होता जा रहा है और वहां पर ऑर्डर बनता जा रहा है, लेकिन ऑर्डर वहां पर ज्यादा लिहाज से बन रहा है एज कंपेयर टू जितने यहां पर डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। सो थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग द रिवर्स ऑफ दिस, कि थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम डिसऑर्डर टुवर्ड्स ऑर्डर, राइट। अब सिचुएशन ये है यहां पर कि ऑर्डर से डिसऑर्डर तक चीजें खुद जाती हैं, राइट, खुद जाती है, ये खुद होता है। लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर तक खुद नहीं होता, आप किसी तरीके से करवा जरूर सकते हो लेकिन खुद नहीं होता। सो दैट इज व्हाई दिस चेंज इन एंट्रोपी इज कॉल्ड टाइम एरो। टाइम एरो का मतलब यह है कि जितनी हीट इसने लूज की थी, अगर तो मैं चाहता हूं कि वो हीट वापस आए, सो द ओनली वे पॉसिबल इज कि मैं टाइम को रिवर्स कर दूं, अदरवाइज खुद से उधर से एनर्जी नहीं आएगी, खुद से एनर्जी नहीं आएगी, खुद से ये नहीं होगा, राइट। द ओनली सिचुएशन पॉसिबल इज कि यहां से वो जो 10 जूल की एनर्जी सराउंडिंग में गई थी, वही 10 जूल की एनर्जी सराउंडिंग से वापस आ सकती है इनटू द सिस्टम, अगर तो मैं टाइम को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, राइट। दैट इज द थिंग, द ओनली सिचुएशन पॉसिबल इज कि अगर मैं खुद से कहूं, देखिए गौर से देखें, यहां से यहां तक का सफर स्पॉन्टेनियस था, ठीक है जी, और यहां से यहां तक होने वाला टाइम क्या हो रहा था कि टाइम वाज मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट टुवर्ड्स फ्यूचर, राइट। ये जगह से प्रेजेंट है, इधर से हीट निकली तो वो फ्यूचर हो गया, तो इसकी एनर्जी कम, सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा हो गई। ये स्पॉन्टेनियस है ना, खुद ब खुद हुआ, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होगा। हाँ, तब ही पॉसिबल है अगर मैं टाइम को उल्टा कर दूं, अगर मैं टाइम को कहूं कि वो फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो हीट जो यहां से यहां पर निकली थी वो वापस आ जाएगी, राइट। सो यहां पर सिचुएशन ऐसी होती है कि व्हेन थिंग्स मूव फ्रॉम डिसऑर्डर टू ऑर्डर, सो द ओनली सिचुएशन इज पॉसिबल कि अगर आप टाइम को उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करवा दो, कि इफ द थिंग इज मूविंग फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है? No, it is not possible. We are moving from present to future, right? So this is the situation. So that is why the change in entropy is called a time arrow. Time arrow means कि टाइम का जो एरो है, राइट, टाइम की कमान से निकलने वाला जो एरो है, वो जिस डायरेक्शन में जाता है, इज इज क्लियर, तो वो डायरेक्शन है फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, right? Or from present to future, things are continuously moving from order to disorder in the whole universe. In the whole universe, अब मैं जनरलाइज करके बात कर रहा हूं। यहां पर तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल की बात की। अगर आप यहां पर सन और अर्थ की बात देख लो, लेट अस से दिस इज योर सन एंड द सराउंडिंग इज योर अर्थ, सो यू आर कंटिन्यूसली रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम सन, राइट। क्या ये पॉसिबल है कि
जो एनर्जी आप रिसीव कर गए हो फ्रॉम सन, वो एनर्जी अर्थ से वापस चली जाए टुवर्ड सन। क्या ये पॉसिबल है? राइट? ये तब ही पॉसिबल है if the change in entropy is negative, if it of the whole universe is negative, मतलब the process is not spontaneous। इसका मतलब ये है कि things are moving from disorder to order, या in simple words कि ये तब ही हो सकता है अगर आप टाइम के फ्लो की डायरेक्शन उल्टी कर दो, फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट कर दो, जो कि नहीं है। टाइम की जो एरो है वो ये है, फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, नॉट फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। सो दैट इज व्हाई एंट्रोपी इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइम एरो, कि वक्त की गुजरने के साथ साथ जिस तरह कि हम जा रहे हैं फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, डिसऑर्डर यूनिवर्स का बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड अ टाइम एरो, राइट? सो दैट इज वन एग्जांपल। लेट अस अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल। Okay, so now I have two different types of gases. Now this is example number 2, which will be the end of this lecture. Gas number 1, right? And gas number 2. जो blue particles है वो एक अलग तरह का गैस है, और जो black particles है वो एक अलग तरह के गैस है, मतलब दो different nature के gases हैं। अब फिलहाल initially, right at an instant, मैंने उनको एक कंटेनर में बंद कर रखा है, और आप इमेजिन करो कि यहां पर दरमियान में एक बाउंड्री है जो कि दोनों को सेपरेट करके रखी हुई है फिलहाल, राइट? दिस इज द बाउंड्री। लेट अस इमेजिन करें एक इनविजिबल बाउंड्री है जो कि दोनों को सेपरेट किया हुआ है। ये बड़ा फेमस एग्जांपल, इससे बड़े आपको क्लियरिटी से समझ आ जाएगी। अब यहां पर अगर जैसे ही मैं इनको अलाउ करूं टू मिक्स विद वन अनदर, लेट अस से आई स्टार्ट द टाइम, स्टार्ट द काउंटडाउन। सो आप देखोगे कि कुछ देर बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। द सिचुएशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट? सिचुएशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस कि पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, कहां पर ब्लू, कहीं पर ब्लैक, कहीं पर ब्लैक, कहीं पर ब्लू, मिक्स हो जाएंगे, राइट? तो यहां पर अगर आप देख लो, द पार्टिकल्स वर इन परफेक्ट ऑर्डर। ब्लैक एक परफेक्ट ऑर्डर में बिल्कुल एक साइड पे, सारे के सारे ब्लू पार्टिकल्स दूसरे साइड पे, राइट? जो एक गैस के नेचर है वो एक तरफ, दूसरा गैस वाला जो दूसरा डिफरेंट नेचर वाला गैस दूसरी तरफ, तो एक परफेक्ट ऑर्डर था। सो एंट्रोपी वाज एट इट्स मिनिमम, डिसऑर्डरनेस सबसे कम होगा, कम। लेकिन जैसे हम इनको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम को स्टार्ट करते हैं एकदम से, तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये वाला पार्टिकल इधर आ जाता है, राइट? लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू। ये वाला पार्टिकल लेट से इधर आ गया, वो वाला पार्टिकल उधर चला गया, ये वाला सिमिलरली इधर आ गया, ये वाला उधर चला गया, मतलब आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए, और ये सिचुएशन बन गई है। अच्छा जी, ठीक हुआ। अभी जो मिक्सिंग हुई है इन पार्टिकल्स की मोशन की वजह से हुई है, राइट? तो यहां पर आपको पता है कि जब भी हम दो गैसेस को यहां पर रखेंगे तो उनका आपस में मिक्स होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता। एक गैस को मैंने यहां पर रखा, दूसरे को मैंने यहां पर रखा, दरमियान में वो जो बाउंड्री थी वो मैंने हटाई, खुद ब खुद आपस में मिल गए, राइट? मिक्स हो गए। तो ये मिक्स होना क्या आपने किया? नो, दे देमसेल्फ चूज टू बी मिक्स्ड, खुद ब खुद मिक्स हो गए, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। तो इस पॉइंट से, इस पोजीशन से, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक इस कंटेनर की जो हालत है, दिस इज स्पॉन्टेनियस। Spontaneous means कि things moved from order to disorder। वक्त के गुजरने के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ का क्या मतलब है कि टाइम वॉज मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। लेट अस से ये प्रेजेंट है, तो कुछ देर बाद उसका फ्यूचर ये हो जाता है, राइट? दैट इज द थिंग। ठीक है जी? Okay, so this is the situation from this to this. Okay, ठीक हुआ, chaos बढ़ गया, disorder बढ़ गया। लेकिन जिस रास्ते से ये पार्टिकल गया उधर, वो वाला इधर आया, ये वाला उधर गया, ये वाला इधर आया, अगर एग्जैक्ट सेम रास्ते से वो पार्टिकल्स वापस चले गए जिस रास्ते से मिक्स होने के लिए गए थे, तो आपके पास ये सिचुएशन चली जाएगी फ्रॉम 2 to 1 लाइक दिस, फ्रॉम 2 to, सॉरी, यहां पर फ्रॉम 2 to 1 इस तरह चली जाएगी सिचुएशन। देखिए ये पार्टिकल लेटर से यहां से लेकर यहां तक आ गया, ये वाला नजर आ रहा है, लेट मी कॉल इट पार्टिकल 1, दिस इज 1, तो इधर था और इधर से इधर तक आ गया इनिशियली। तो अगर एग्जैक्टली उसी रास्ते से, बिकॉज वो पार्टिकल्स तो मूव हो रहे हैं,
मूव हो रहे हैं। समहाउ लेट अस से समहाउ एक ऐसा चांस लेट अस से बन जाए कि सारे के सारे पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में मूव हो गए थे जब सिचुएशन यहां से यहां पे बनी, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वापस चले गए, तो क्या जा नहीं सकते? क्या इस पे पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं। जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से जा भी सकते हैं, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि जिस डायरेक्शन में वो मिक्स हुए, अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में गए तो वो क्या हो जाएंगे? अनमिक्स हो जाएंगे। दिस इज मिक्सिंग, और वो क्या है? अनमिक्स, राइट? तो क्या इसमें कोई कबाहत है? क्या कोई मसला है? नो, इट इज अलाउड, हो सकता है, लेकिन येट इट डजंट हैपन। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि दो गैसेस जो है खुद ब खुद अनमिक्स हो जाए। लेट मी से दिस अगेन, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि दो गैसेस जो है वो आपस में मिक्स फॉर्म में थे और खुद ब खुद कुछ देर बाद या किसी भी टाइम बाद हम देखते हैं कि एक लम्हा ऐसा आया कि वो बिल्कुल प्रॉपरली अनमिक्स्ड होंगे। मतलब ये सिचुएशन अचीव हो गई कि एक नेचर वाला बिल्कुल उस तरफ चला गया और दूसरा नेचर वाला इस तरफ आ गया। कभी भी ये नहीं होगा, राइट? हालांकि इट डजंट वायलेट एनी लॉज ऑफ फिजिक्स, बिकॉज अगर वो मिक्स हुए थे तो उन पार्टिकल्स की आपस में मोशन की वजह से मिक्स हुए थे, तो उन्हीं पार्टिकल्स की आपस में मोशन की वजह से वो अनमिक्स भी हो सकते हैं, अलाउड है, लेकिन इट डजंट हैपन, राइट? सो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। हम करवा जरूर सकते हैं लेकिन खुद से कभी भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस बिकॉज नेचर टेल्स, नेचर आपको ये बताता है कि जी मैं ये नहीं होने देता, यही होगा, हमेशा यही होगा, ये कभी भी नहीं होगा, राइट? हालांकि इट डजंट वायलेट एनी लॉज ऑफ फिजिक्स। लेट मी टेल यू अगेन, सो दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस मींस कि ये क्यों नहीं स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज यहां पर आप देखोगे कि थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम डिसऑर्डर टुवर्ड्स ऑर्डर। ठीक है जी, थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम डिसऑर्डर टुवर्ड्स ऑर्डर, और ये द ओनली सिचुएशन दैट इट इज पॉसिबल कि अगर हम क्या कर ले, गुजरे हुए टाइम को उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में प्ले कर दें। जिस तरह की आप मूवी को प्ले करते हो ना, आप उसको रिवर्स में प्ले कर दो, राइट? कि जिस तरह से यहां पर ये प्रेजेंट हुआ करता था एंड दिस हैपेंस टू बी फ्यूचर, कि कुछ देर बाद ये सिचुएशन बन गई। अगर मैं टाइम का दायरा उल्टा फ्लो करवा लूं कि ये आपके पास लेटर से फ्यूचर है जो कि उल्टा फ्लो कर गया इनटू द प्रेजेंट, राइट? तो तब ये पॉसिबल है। सो दिस इज अ फ्यूचर जो कि फ्लो उल्टा कर गया इनटू द प्रेजेंट। ठीक है जी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, डिसऑर्डर जो है वो कभी भी ऑर्डर की तरफ नहीं जाएगा। चीजें जो है वो हमेशा मूव करती है अच्छी से खराब की तरफ। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आप अगर इर्द गिर्द नजर डालो, सोशल लाइफ पर भी आप देख लो, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम ऑर्डर एंड स्लोली मूविंग टुवर्ड्स डिसऑर्डर फ्रॉम द बिग बैंग टू दिस पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। एक्सपैंडिंग हो रही है और एक्सपैंडिंग के साथ क्या हो रहा है जी? डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, राइट? जिसके ऊपर इंशाल्लाह से फिर कभी बात करेंगे अगर रिलेटिविटी के में हम इंशाल्लाह जब जाएंगे। सो ये नहीं पॉसिबल, और ये नहीं पॉसिबल जिसका मतलब है नॉट स्पॉन्टेनियस, और इसके लिए ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी लेस देन जीरो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एंड यहां पर आपके पास जो है चेंज इन एंट्रोपी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, which is the only way to go. So heat always flow from a body at higher temperature to the body at lower temperature. वो जो इससे पहले चाय वाली एग्जांपल की थी। सो केल्विन और क्लॉजियस स्टेटमेंट को बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने आज समझा है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। वेरी वेरी कूल कॉन्सेप्ट। आई बिलीव कि कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा, एंड आई बिलीव दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो जवानों और जवानियों कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इंशाल्लाह से गिब्स फ्री एनर्जी पर, थोड़ा बहुत उसके ऊपर बात करेंगे। अगर थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है लेकिन देखते हैं कि कैसे हो, हम देखेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर एंड अस्सलाम वालेकुम।